Morning, children. Today we learn Kali and the Red Snake by Jay Wetkar. Jay Wetkar has written a dozen books, most of them for children and young readers. She writes about wildlife and conservation. Her interest in this era begins when she was a young girl in Mumbai. Because of the several naturalists in her family, after college, Jay worked at the Snake Park and Crocodile Bank in the Chennai. Before we start, little know these some words and their meanings. एंटीवेनस सीरम, बिसर औषधि, जहर का टीका, वियर्ड विचित्र, नूट केहूनी से धक्का दिया, टर्माइट दीमक, पिलमीरा ताड़ का पेड़ का एक प्रकार जो एशिया में पाया जाता है, गिंग मूर्खतापूर्ण हंसी, ट्रैक रास्ता, स्लोली धीरे से या धीरे धीरे, कोऑपरेटिव सहकारी या मिलजुल कर काम करने वाला या वाली, गिगल्ड मूर्खतापूर्ण हंसी, सिली बेवकूफ़, हाउएवर किसी भी प्रकार से, सपोज मानना, लकी भाग्यशाली, शॉर्ट प्रकार, विस्पर फुसफुसाना, ट्रबल लुढ़कना, रैट स्नेक चूहे पकड़कर खाने वाला सर्प, शॉर्ट ऑफ वर्क काम का एक प्रकार, एक्साइटमेंट उत्तेजना, क्यूरियसली उत्सुकतापूर्ण, हिस फुसफुसाना, बीम कड़ी. Now start this chapter. Kali walked along the thorny forest track as slowly as he could. He was on his way to school. Kali's father was one of the most famous snake catchers of the Irula tribe. He had caught over 100 cobras this monsoon and brought many good things for the family. The snake cooperative paid ₹150 for each poisonous snake. They took out the poison from snake to make antivenomous syrup. When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machine, but now he dragged his feet. I hate school, he told the bushes as his walk get slower and slower, and school hates me. The bushes did not seem to understand or feel sorry for him. It's been 2 months since I joined school, but I don't have a single friend. I get the feelings. I think they think we Irulas are weird. इस कहानी को प्रस्तुत करने से पहले हम इस कहानी के बारे में कुछ जान लें. This story is about a boy, Kali, who belongs to Irula tribe of Tirumbalam district of Tamil Nadu. काली नामक एक लड़के की कहानी है जो कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की इरुला जाति का है. द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नेक कैचर्स एंड कालीज फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब. इरुला जाति के लोग सांपों को पकड़ने के लिए मशहूर हैं और काली का पिता इस काम में अपनी जाति में उत्तम लोगों में से था. दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समवट abnormal in the eyes of his classmates. Will Kali be able to make friend in his class? Read the story to find out. यह बात उसके पिता और काली के सहपाठियों की नज़र में जरा सा असाधारण बनाती है. क्या काली अपने कक्षा में मित्र बनाने में कामयाब हुआ? मालूम करने के लिए कहानी आगे पढ़ें. काली काटीले जंगल से होकर जा रहा था. मंद चाल से वो स्कूल जा रहा था. काली के पिता इरुला जाति के सबसे विख्यात सांप पकड़ने वाले थे. इस बारिश के मौसम में उन्होंने 100 से ज़्यादा कोबरा सांप को पकड़े थे तथा बहुत सारी अच्छी चीज़ें परिवार के लिए खरीदी थी. एक सहकारी संस्था एक जहरीले सांप के ₹150 देती थी.
वे लोग विषरोधी सीरम बनाने हेतु सांपों का जहर निकालते थे। काली जब अपने पिता के साथ सांपों को पकड़ने जाया करता था तो उसके पांव मशीन की भांति बहुत तेजी से चलते थे, पर उस वक्त वो पैर घसीटते हुए चल रहा था। मैं स्कूल से घृणा करता हूँ, वो झाड़ियों से बोला, और उसकी चाल धीमी और धीमी हो गई। और स्कूल मुझसे घृणा करता है। झाड़ियाँ उसके दुख को समझते प्रतीत नहीं हो रही थी। मुझे स्कूल जाते हुए 2 महीने हो चुके हैं, पर अब तक मेरा एक भी मित्र नहीं बना है। मुझे लगता है मेरे विचार से उसको सोचना है कि हम इरालू उनका सोचना है कि हम इरालू जाति के लोग अजीब होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। On the first day of school, each student had to stand up and tell the class 3 things: his or her name, the name of the village, and what their father did. My name is Amu. My village is Melur. My father is a bus conductor, said the first child. Then come Selvi, author's postman. When it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. I am Kali. My village is Kanthur. My father is a snake catcher. The children giggled and nudged one another as if he had said something silly. For the first time in his life, Kali did not feel proud of being an Irula. He wished he were just like other and ordinary boys with a bus conductor father. Anyway, that was 2 months ago. Kali was getting used to it, but it was hard, and his school walk get slower and slower. Kali reached the school gate as the bell was ringing. As usual, he sat in the back row alone, wishing he had friends, wishing he could fail and be thrown out of the school. But falling was not easy. He had tried, but however badly he wrote his lesson, the teacher seemed pleased with him. स्कूल के पहले दिन प्रत्येक छात्र को खड़े होकर कक्षा को 3 चीज़ें बतानी थी: उसका नाम, गांव का नाम, और उसके पिता का काम। पिता क्या काम करते हैं? पहले छात्र ने कहा, मेरा नाम रामू है, मेरा गांव मेलूर है, मेरे पिता एक बस कंडक्टर हैं। फिर संघी और आथुर डाकिया की पारी आई। जब काली की पारी आई, वो इतना खुश था कि वो गुब्बारे जैसा फूला हुआ महसूस कर रहा था। मेरा नाम काली है, मेरे गांव कंथूर है, और मेरे पिताजी सांप पकड़ने का काम करते हैं। सब बच्चे हंस पड़े और एक दूसरे को इशारे करने लगे, जैसे उनसे कोई गलत बात कह दी हो। जिंदगी में पहली बार काली को अपने इरूला जाति का होने पर गर्व नहीं हुआ। उसने सोचा कि यदि उसके पिता भी बस कंडक्टर होते तो वो भी दूसरे बच्चों की भांति एक आम बालक ही होता। इस बात को 2 महीने बीत गए थे। काली ऐसी घटनाओं का अभ्यस्त हो चुका था, पर यह बहुत कठिन था और स्कूल जाने की उसकी गति बहुत मंद होती जा रही थी। स्कूल की घंटी बजने के वक्त काली स्कूल पहुंचा। रोज की तरह वो पीछे की पंक्ति में बैठा अकेला सोचता कि काश उनके भी मित्र होते, काश वो अनुत्तीर्ण हो जाता और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। परंतु अनुत्तीर्ण होना कठिन था। उसके प्रयत्न किया था। वो कितना भी गंदा लिखता, शिक्षक उससे खुश ही रहती थी। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ एंड राइटिंग and then it was break time. The children rushed outside to have their snacks. Some had idlis, others had mixture, a slice of bread, or 2 or 3 biscuits. Oh no, fried termite, his favorite actually. But what if someone saw? He had to hide. He sat on the wall far away from the others and finished his tiffin. Termites did not taste as good here as at home.
Suppose someone come near me. Suppose someone ask what I have brought. Kali wondered anxiously. The bell rang. Break was over. It wasn't same teacher but another subject, English. They had to write the English alphabet on their slates. Teacher walked around the room with a stick, hitting a child who had made mistakes. Lucky through Kali, lucky that he could make the teacher angry, he would try and make a mess of his slate too. Teacher stood in front of Kali, but instead of a swish of the stick, he got a pat on the back. Teacher held up Kali's slate for the class to see. Here, this is the sort of work I want to see from anyone, he said. Now the teacher would hate him more than ever. Kali could hear the whispering in the classroom. He had never had friend in school and he had never get kicked out. इस सुबह उन्होंने गणित तथा सुलेख का काम दिया। छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी चीज़ें खाने के लिए बाहर की ओर दौड़े। किसी के पास इडली थी, किसी के पास मिश्रण था, एक के पास ब्रेड तो 2-3 बिस्किट, इसके पास भुने हुए दीमक थे। असल में ये उनकी मनपसंद चीज़ थी, लेकिन यदि किसी ने देख लिया तो उसके स्वयं को छुपाया वह दूसरे छात्रों से दूर जाकर दीवार पर बैठ गया और यहाँ खाना खाया। अब भुने हुए दीमक घर जैसे स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे। वो सोचने लगा, यदि कोई मेरे पास आ गया तो अगर कोई पूछेगा कि मैं क्या लाया हूँ तो वो बहुत चिंतित हो गया। घंटी बजी, आधी छुट्टी का समय खत्म हो गया। यह भी उसी शिक्षक की क्लास थी, लेकिन विषय दूसरा था, अंग्रेजी। सभी को अपनी अपनी प्लेट पर अंग्रेजी लिपि लिखनी थी। शिक्षक एक छड़ी लेकर कक्षा में चारों तरफ घूम रहा था। उसने एक लड़के को, जिसने गलती की थी, एक छड़ी मार दी। भाग्यशाली है, काली ने सोचा। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि वो शिक्षक को क्रोधित कर सकता था। वो भी कोशिश करना चाहता था, कोशिश करेगा ये सोचा और अपनी स्लेट पर भी लिख दिया। शिक्षक काली के सामने खड़ा था। उसने छड़ी की बजाय पीठ पर थपथपाया। शिक्षक ने काली की स्लेट लेकर ऊपर उठाई ताकि कक्षा में बच्चे देख सकें और कहा, देखो, ऐसा ही काम मैं तुम सबसे देखना चाहता हूँ। अब तो सब पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगे काली से। काली कक्षा में फुसफुसाहट सुन रहा था। स्कूल में उसका कोई भी मित्र नहीं होगा और उसे स्कूल से भी निकाला नहीं जाएगा। Just then, something happened in the room. At first, Kali did not understand it. Arms and legs flew, bodies ran, tempered over each other, fell, ran some more. There were shouts from all directions, help, help, teacher, help. But the teacher was under his table. Eyes and heads pointed to the ceilings. Now Kali understood. There on the roof was a large rat snake. It must have smelled rat on the roof tiles and come after them. By mistake, it had taken the wrong turn and come into the class instead. Kali's father said that sometimes snakes smell human and mistook them for rats. Maybe this one thought, wonderful, here's room full of rats. The rat snake was wrapped around a palmary bench on the roof. It stretched out its neck curiously. It must have been surprised by all the excitement. Slowly, more and more of its body uncoiled from the bench. Kali, looking up, knew what was going to happen next, and it did. तभी कमरे में कुछ हुआ। पहले तो काली की कुछ समझ में न आया। बाहें तथा पैर उड़ने लगे, शरीर दौड़ने लगा। तभी सभी एक दूसरे पर लुढ़कने लगे, गिरने पड़ने लगे।
हर तरफ शोर मचा हुआ था, बचाओ बचाओ सर बचाओ। लेकिन शिक्षक तो अपनी मेज के नीचे घुस गया था। आंखें और हाथ कमरे की छत की तरफ इशारा कर रहा था। अब काली समझ गया था, छत पर एक बड़ा सा चूहे खाने वाला सांप था। अवश्य इसने छत की टाइल्स में चूहों की गंध सूंघ लिया होगा और वो इधर आ गया। लेकिन ये गलत जगह पर मुड़ गया और कक्षा में आ गया। काली के पिता कहा करते थे कि सांप कभी कभी आदमी की गंध को चूहे की गंध समझ लेता है। इस सांप को भी ऐसा ही लगा होगा। वाह, चूहे से भरा हुआ कमरा है। सांप कमरे की छत पर बीम पर लिपटा हुआ था। सांप ने अपनी गर्दन विचित्र तरीके से ऊपर उठाया। ये अवश्य ही इस जिज्ञासा से हैरान हो रहा था। धीरे धीरे बीम पर से उसके शरीर की कुंडलियां खुलने लगी। काली तुरंत समझ गया कि आगे क्या होने वाला था और वो वैसा ही हुआ। So children, we read next paragraph in the next class. Thank you.